Namaskar students, welcome back. Myself Neha, and today we will discuss about the next topic of animal cell culture and its application. And the topic for today is gene knockout. As in our previous lecture, we have given the introduction for the word gene knockout, means removing a gene specifically, and generally we do this experiment on our experimental animal. Commonly used experimental animal is mice. So we can term as gene knockout as a knocking out the genes, means selectively removing a gene, and the primary use of this technique is to replace a normal gene with a mutant allele or a disruptive form of gene, thus knocking out the gene's function. Actually, why we are doing this? By removing a normal gene, we can specifically study the function of that particular gene, and the organism in which we are doing it is commonly a mice, and therefore that particular mice in which a particular gene is removed off and that is knocked off, they are known as knockout mice. In this process, there are two steps involved. The first step is formation of the recombinant embryonic stem cell. मीन्स रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यहाँ पर क्या मतलब है? अभी तक जब भी हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, वहाँ हमारा तो इंटरेस्ट होता था टारगेट जीन को इंसर्ट करना, हमारे इंटरेस्ट के जीन को इंसर्ट करते थे. बट इन द जीन नॉकआउट वी रिमूव आवर टारगेट जीन, मीन्स वी आर रिमूविंग द जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट on which we have to study the function of that particular gene we want to know. So here the process is the same. Firstly, the formation of the recombinant embryonic stem cell, and second is selection. क्योंकि बहुत सारी तरह के रिजल्टेंट्स आते हैं हमारे पास, तो जिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में से वो पर्टिकुलर जीन रिमूव हुआ है, उस पर्टिकुलर जीन के रिमूवल के साथ साथ क्या उसका जो स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर है, उस वाले ऑर्गेनिज्म को हमें, सेल को हमें सिलेक्ट आउट करना है सिलेक्टिवली. एंड दिस इज explained with a diagram here. For example, this is the gene which is the mutated version, or we can say the disruptive, and this is the insert which we have prepared, and this insert, ये जो segment है, ये उस particular gene की जगह introduce होना चाहिए जिस particular normal gene को हमें study करना है. And for the selection purpose, we have also introduced neomycin resistant gene here. As in our one of the previous video, we have discussed about the insertional inactivation. तो वहाँ पर हमने ampicillin या tetracycline resistance gene पढ़ा था. यहाँ पर हम neomycin resistance gene पढ़ रहे हैं, because neomycin is the antibiotic which work against the animal cell. Here we cannot use the tetracycline or ampicillin because they are specific for the bacterial cell. So the selection which we have to do is done with the help of the neomycin. This is our target gene which is to be inserted in place of the normal gene. Here are the embryonic stem cell which we isolate from the blastocyst. ये हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम इनर सेल मास से आइसोलेट करते हैं. Now what we have to do, we have to
introduce this target gene into these embryonic stem cell. तो ये हमारे कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है और इसके अंदर हमने ये जीन डाल दिया। जब हम जीन डालते हैं तो क्या 100% प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल होता है कि वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होगा या इंट्रोड्यूस होगा भी या नहीं। सो द चांसेस ऑफ परफेक्ट इंट्रोडक्शन इज वेरी लेस। जो हम कहते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स है जो हमें चाहिए वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के हमने शो किए। वन इज अ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वो वर्ड है जहां पर हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं। मींस ये हमारा फंक्शनल जीन था, नॉर्मल जीन था, जिसकी जगह हमें इस प्रॉपर जीन को, जो टारगेट हमने जीन बनाया है, वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए था। दिस इज द नॉर्मल जीन एंड this when a complete normal gene is knocked out or replaced with a mutant allele. This is a mutant allele or we can say the disruptive form. और ये जो है ये हमारा नॉर्मल है। तो जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, हमारे बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वहां पर इन एरोस की जगह ये क्रॉस है। मीन्स यहाँ से क्रॉस ओवर चेंज हो गया और ये नॉर्मल जीन जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर था उसमें से ये अब रिमूव हो जाएगा और ये वाला जीन उसकी जगह इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज नॉट गिवन इन आवर बुक बट आई हैव टेकन इट हियर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। In many cases, the chances are that this target gene, which is a mutated gene, will not introduce at its exact location. Means जो हमारा normal gene था ये वहाँ पर नहीं गया, तो इसको हम बोलते हैं random insertion। और जब ये properly insert होता है तब हम इसको बोलते हैं gene targeted insertion। And what is of our interest? It should be gene targeted insertion कि हमारा नॉर्मल जीन पूरी तरह से रिप्लेस होकर म्यूटेंट की जगह, सॉरी नॉर्मल की जगह म्यूटेंट आ जाए। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर दिस इन आवर बुक देयर इज अ डायग्राम which is given as पेट्री प्लेट पे उन्होंने रेड और येलो कलर के सेल्स दिखाए हैं और उसमें से एक सेल जो डिफरेंट है और सबसे, उसको हमने सेलेक्ट किया है और ये हमारा वो जीन है जिसके अंदर जीन टारगेटेड इंसर्शन हुआ है और उसको हमने फिर पूरी तरह से ग्रो कराया है। इट इज येलो इन कलर इन आवर बुक। तो ये हो गया हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जिसको हमने फिर फर्दर कल्चर कर लिया और अब यहाँ से हम अपना स्टडी कर सकते हैं। दिस इज जीन नॉकआउट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज सिलेक्टेड ऑन द नियोमाइसिन एंड द होमोलोगस embryonic stem cell recombinates with targeted disruption in the gene survive. It is entirely similar जब हम पढ़ते थे कि हमारे पास या तो अनट्रांसफॉर्म सेल होंगे जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, या होगा ट्रांसफॉर्मेशन विद जीन ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड हियर आवर इंटरेस्ट जीन is replaced, so we can say that we have selected for the transformation with gene of interest. So this is about the gene knockout. So we can say that the models, कौन से models? Knockout mice models are used to better understand the genetic basis of a particular disease, because when we delete, remove a particular gene from an organism, that organism will show some characteristic features, and now we can correlate those characteristic features from the mice which is knocked out and
compare it with the mice, which is normal. So this is all about the gene knockout technology. And next is the tissue engineering. As the name says, tissue engineering, here we are engineering a tissue. किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को हम लैब में कल्चर कर रहे हैं, लैब में ग्रो करा रहे हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स. एंड वी नो दैट होल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू यूज एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द ह्यूमन बींग्स. सो टिश्यू engineering, in broad terms, it is understood as a use of combination of cells. बहुत सारी चीजों का यूज होता है. use of combinations of cell and engineering methodologies and material methods. ये दो चीजें हो गई. इसके बाद आता है हमारे पास सुटेबल फिजिकल एंड बायोकेमिकल फैक्टर्स. अगर हम बात करते हैं कि हमें टिश्यू इंजीनियरिंग करनी है तो हमें सेल्स चाहिए, टिश्यू. दूसरी चीज हमें चाहिए मटेरियल मैथड्स, और तीसरी चीज चाहिए वो प्रॉपर फैक्टर्स, वो कंडीशंस जिसमें वो टिश्यू ग्रो कर सकता है टू इम्प्रूव एंड रिप्लेस बायोलॉजिकल टिश्यू. इससे हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा? हम एक बायोलॉजिकल टिश्यू को बना पाएंगे लैब में. इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं इंजीनियरिंग. एंड व्हाट इट मेनली इन्वॉल्व्स, it involves the use of a tissue scaffold. This word is important. It involves the use of tissue scaffold. And what is this tissue scaffold? It is a extracellular matrix. ये scaffold होता क्या है? ये एक मैट्रिक्स होती है. मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जब भी हमारा कोई भी सेल टिश्यू अरेंज होता है तो दैट टिश्यू विल हैव टू रिगेन इट्स स्ट्रक्चर इन 3D फॉर्म, एंड दैट 3D स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रिक्वायर स्कैफोल्डिंग. मीन्स अगर हम बात करें कि हमें एक शेप बनानी है इस तरह की से, इस तरह की हमें शेप बनानी, तो ये हो गया बेस, और उसके ऊपर हम कोई भी काम करेंगे तो ये हो गई, ये जो मटेरियल हो गया ये हो गया स्कैफोल्डिंग मैट्रिक्स, और उसके ऊपर जो हमारा काम हो रहा है दैट इज योर टिश्यू जो हमें प्रोड्यूस करना था, जो हमें बनाना था. एंड दिस ऑल पर्पस वी आर डूइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वायबल टिश्यू. वायबल टिश्यू का क्या मतलब है? जो लिविंग है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन राइट इट फॉर अ मेडिकल पर्पस. सो स्कैफोल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम बॉडी से सेल्स को आइसोलेट करते हैं, उन सेल्स को ग्रो कराते हैं, और ग्रो कराने के बाद 3D अरेंजमेंट करते हैं. एंड दिस 3D अरेंजमेंट इज डन इन अ स्कैफोल्ड मैट्रिक्स. और जब ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है तो हम इसको फिर से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है? सो वी कैन से दैट the aim of this tissue engineering is to supply body parts. You can write it.
aim is to supply body parts. For repair of damaged tissue. So this is all about टिश्यू इंजीनियरिंग. अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट 2 वर्ड्स जब हम इस चैप्टर को थ्रू आउट पढ़ रहे थे, वी हैव लेफ्ट ओवर. जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें एक वर्ड छूटा था, एडहेरेंट कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर. तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स है, पहला है एडहेरेंट कल्चर. एडहेरेंट कल्चर जब हमने फाइनाइट सेल लाइन से पहले प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर पढ़ा है, वहां पर ये वर्ड है. एंड दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द मीडिया. एडहेरेंट कल्चर वो होते हैं विच रिक्वायर्स एंड एनकरेज डिपेंडेंसी, मीन्स दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अ लिक्विड मीडिया, एंड दिस कैन बी ग्रोन इन अ लिक्विड मीडिया, और वी कैन से नॉन एनकरेज डिपेंडेंट. यहाँ पर हम फाइनाइट और कॉन्टिन्यूअस सेल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं. वो नॉर्मल सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल किडनी का अगर सेल है और उसको हमें ग्रो करना है, इट बेटर ग्रो विद एडहेरेंट कल्चर, while a blood cell will better grow with a suspension culture. ये 2 words रहे थे. And another word which we left in between is the vessels. There are different vessels, different equipments we have used in the animal cell culture. Vessels के नाम है Petri plates, culture flasks, multi-well plates. ये मल्टीवेल प्लेट्स और कल्चर फ्लास्क कैसे होते हैं? कल्चर फ्लास्क तो सिंपल जो हमारे फ्लास्क होते हैं उसकी तरह के होते हैं. इनका क्योंकि एनकरेज डिपेंडेंसी चाहिए, तो जो दैट सरफेस है, सरफेस के बेसिस पे वो वेरी कर सकते हैं. हम बहुत पतली जो बॉटल्स होती है उस तरह की बॉटल्स, जैसे आपका ये डस्टर है, ये बहुत थिन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्लास की बनी हुई है ऐसे, तो बीच का जो पूरा सरफेस है अंदर वाला, दैट विल बी अवेलेबल फॉर द एनकरेज डिपेंडेंसी ऑफ द ग्रोइंग सेल. और जो मल्टीवेल प्लेट्स होती है, दैट मल्टीवेल प्लेट्स आर स्मॉल वेल्स. ये वेल्स है छोटे छोटे इसमें, और इस वेल में थोड़ा सा मीडिया डाल डालकर हम हर वेल में अलग अलग कल्चर कर सकते हैं. ठीक है. एंड व्हेन वी आर ग्रोइंग एनी ऑफ द मीडिया or animal cell in any Petri plate or the culture flask or the multi-well plate, we have to provide the proper physiological conditions which are required for the growth of the animal cell. For example, we have to provide the carbon dioxide that is 5 to 10% or the proper humid condition. So this is all about our complete chapter, animal cell culture and its application. And for the practice sheets, 1 marks question, 2 marks question, 3 marks or 5 marks question, you can visit the blog abcofbiotech.blogspot.com, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. I will try to give you the links of that particular sheets also. So thank you for today.